और सर, my husband is in private job, Good. and currently I'm a housewife and Very good. doing a small business Very good. from home, Very good. cake making business, sir. वेरी गुड. हाँ, लॉकडाउन में केक मेकिंग जो है बहुत ही हॉट हो रहा है एंड पीपल हैव रियली शार्पन देयर स्किल्स और उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ है एंड इट्स रियली गुड. इट्स वेरी गुड. सर, सारा इंटरेस्ट जो है वो लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुआ सर, वो क्रिएटिविटी करने का। Yes, it has been an opportunity and at the same time it has been an evil. दोनों ही चीजें नहीं है. थ्रेट भी रहा है और अपॉर्चुनिटी भी रही है. इट्स ऑल सर अबाउट. आपके बारे में हाँ जी. सर आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, सर ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था हमें। ओके. और सर बहुत मतलब ग्लैड हैं आपसे, मतलब आपके बारे में पढ़ के कि इतनी अचीवमेंट्स हैं आपकी, एकेडमिक्स में भी और उसमें भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी सर। ये सब मेरे टीचर्स का आशीर्वाद है. नथिंग अबाउट मी. इट्स ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इस तरीके से शार्पन किया और मुझे इस लायक बनाया. आई गिव ऑल क्रेडिट टू माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स. दैट्स ऑल. नथिंग माइंड. ओके सर। Yes, sir. Yeah. My name is Sahil. Right. Good. I Just was give me a born second, and child. brought up. Just give me a Okay, second, sir. child. Okay. Just a moment. Yes, Sahil, please. Okay, sir. Hello, sir. Hello. My name is Sahil. Mhm. I was born and brought up at Delhi. Good. I have done my I have done my schooling from CBSE board, Mhm. and now I am pursuing Bachelor of Commerce from Delhi University Correspondence. And Good. also I pursuing diploma in animation from Prakriti School of Animation Good. in Noida. And my family includes in my parents and my elder sister. Mhm. They all are working in private sector, and I want to become a businessman. Mhm. Thank you, sir. Very good. Very good. Sir, my name is Srihari. I am from AP. Mhm. So I'm recently completed my diploma and BTech courses. Actually, I am a LTP, and that means licensed technical person in uh, Ongole Municipal Corporation. So I Mhm. have one brother and one sister. They are working in the private sector. My father is a highway labor, and my mother is a housewife. Good. Uh, that's enough, sir. Sir, I will become a civil engineer, sir. So I'm learning in animation course. It's really useful for 3D views and how to my work I will doing and 3D way. Good. So where are you in AP? I'm in Ongole, sir. Prakasam district, Ongole. Okay. Good. Very good. No, I think there must be some technical snag. उसकी वजह से शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया. Yes.
यस, प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। Okay, sir. I call him. I call him. Okay. Okay, all right. Okay. Uh, sorry, sir. Actually, network is not working properly that time. Institute of Technology and Science, Gwalior, and in ग्वालियर? my family, yes, sir, yes, sir. ग्वालियर में कहाँ से? And sir, ग्वालियर में सर गोले के मंदिर के पास में है सर मेरा कॉलेज। गोले के मंदिर के पास MITS। कहाँ? सर रेड क्रॉस रोड पे। अच्छा, अभी बना होगा 5-7 साल में, 10 साल में? यस सर। पहले नहीं तो सर, था नहीं ना वहाँ कॉलेज पे। हाँ, कॉलेज तो सर पुराना है, कॉलेज को तो सर 60 इयर्स हो गए। कौन से कॉलेज से किया आपने? सर माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। हाँ, समझ गया, वो उसके मेले वाली रोड पे है वो। सर ये सर मेले वाली रोड पे हाँ, है। मेला रोड पे है वो, LNIP के आगे। हाँ, वो अच्छे, वो हजीरे वाला जो रास्ता जा रहा है उसके गोल चक्कर के पहले थे, है ना? हाँ, गुड। मैं ग्वालियर रहा हूँ 9 साल, सो आई नो ग्वालियर वेरी वेल। यस सर। हाँ, केवी नंबर 1 का पास आउट हूँ, रेडियो स्टेशन के साथ में जो है। अच्छा। हाँ, गुड। And sir, in my family, my father is sir senior mechanical engineer, and my mother is housemaker, and my younger sister, she is in 12th class. And sir, I am more into creative field. Sir, my hobbies are I love music, I love drumming, and sir, sometimes I write poetry, sometimes I sketch some drawing and painting. Sir, so that's why I also want to make career in this animation field. And गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आजकल मेला लगता है, नहीं लगता है? सर अभी 2 साल से नहीं लगे। हाँ, बट आई रियली मिस दैट, दैट्स अ वेरी गुड टाइम। हमारे टाइम पे तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में लगा करता था। यस सर। अभी कब लगता है? उसी टाइम लगता है, जनवरी में शिफ्ट हो गया है? उसी टाइम लगता है सर, पूरे 1 मंथ का मेला रहता है। बट सर कोविड की वजह से सर पिछले 2 साल से इस बार लगा था सर। बट Okay. सर हम लोग तो सर बाहर थे तो हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा लगता है। हाँ, दैट्स अ वेरी वेरी गुड। लाइक प्रगति मैदान में जो दिल्ली में फेयर है, I mean, it's like that and much better because बहुत लोकल इंटरेक्शन होता है आपका चीजों से, है ना? और लोकल डेलिकेसीज हैं, लोकल क्राफ्ट्समैन हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और यू सी रियल इंडिया एक्चुअली, जो आपका विलेज इंडिया है, क्योंकि साथ में मुरैना वगैरह है, पास में गोहद है और ये सारी चीजें हैं, तो वो पूरा सर अच्छा। थोड़ी दूर पे वो भी है ना सर, शिवपुरी करके। हाँ, वो लेकिन थोड़ा दूर है वहां से। हाँ सर, वो हमारा ननियाल है सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर हमने भी बहुत सुन रखा है ग्वालियर के मेले के बारे में सर। हाँ, इट्स वेरी गुड। मौका, मतलब कोरोना खत्म हो और जब लगे तो यू मस्ट एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम यू गो एंड वहां पे एक स्वीट मिलता है, एक मिठाई मिलती है, इसका नाम खजला है। आई मीन यू टेस्ट दैट देयर फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर दैट अगर ऑथेंटिक और बढ़िया वाला होगा तो इट्स अमेजिंग, यू विल नेवर फॉरगेट इट्स टेस्ट। ओके इट्स अमेजिंग। सर।
How? Yeah. Good morning, everyone. Good morning, sir. My Very name good is Ritu morning. Pandey. I I born in Faridabad, brought up in Gwalior, Madhya Pradesh. आप भी ग्वालियर के हैं? जी सर. वेरी गुड। आप कहाँ रहते हैं ग्वालियर में? सर मैं दीनदयाल नगर रहता हूँ. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं गांधीनगर बहुत रहा हूँ। अच्छा. गांधीनगर और उसके पीछे उधर क्या नाम था कॉलोनी का, भूल गया, बहुत टाइम हो गया। इट्स बीन 96 सिंस आई लेफ्ट ग्वालियर। तो गुड, ओके, प्लीज कंटिन्यू। या Yes, sir. And I completed I completed my diploma in computer science, है ना, and I'm pursuing on I'm pursuing now in BFA, Bachelor in Fine Art, fourth year, final year, and also I'm pursuing in diploma in animation from गुड Prakriti School of Animation. गुड। बीएफए कहाँ से कर रहे हो? क्या कहते हैं, ग्वालियर, ये क्या कहते हैं, एमपी से. नहीं, ग्वालियर में कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो? अच्छा, क्या कहते हैं सही, राजा मानसिंह तोमर. ये कहाँ पर है? सही, क्या कहते हैं, ये अपने सर आपने ग्वालियर में वो सुना है कि एक शिव मंदिर है, बेसिकली हाई कोर्ट हाई कोर्ट के साथ में शिव मंदिर हाँ, है। हाँ, उसे हाई कोर्ट. स्वयंभू शिव मंदिर बोलते हैं। जमीन में से निकल रहा है। अचलेश्वर. अचलेश्वर जमीन में से निकल रहा है। हाँ, मेरे सामने उसके पिलर बाहर आए हैं जब मैं वहां पे रहा हूँ। तो उसके जो पिलर आप देख रहे हो, जब मैं वहां रह रहा था तो हर दिवाली पे वो 1 फुट बाहर आता है मंदिर। हाँ, तो मेरे सामने वो मंदिर जो है वो पूरा ऊपर बाहर आया है वो। So that's amazing, yes. सर उस मंदिर के क्या कहते हैं, उस मंदिर के एकदम सामने ही क्या कहते हैं मेरा कॉलेज है. अच्छा, हाँ, गुड। जस्ट सामने. वहां पे तो पाव भाजी भी बहुत अच्छी मिलती है शिंदे की छावनी पे। हैं? Okay. Sir, where are you from? नहीं यार, वैसे तो मैं वाराणसी का हूँ, ठीक है। Okay. पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में थे तो उनका ट्रांसफर था ग्वालियर। तो करीब 9 साल मैं ग्वालियर रहा हूँ। तो मेरी जो सीनियर सेकेंडरी है दैट हैज बीन फ्रॉम ग्वालियर, केवी नंबर 1। Okay. गुड। तो ग्वालियर के दो लोग मिल गए हैं, सो ओल्ड मेमोरीज हैं Yes, sir. हमारी। गुड। प्लेजर इज माइन। गुड। Yes, sir. Hello and good morning, everyone. I am here today to introduce all of you with our chief guest, Professor Sanjeev Sharma. He is here to give their valuable knowledge about the topic entrepreneurship and tell us about some important facts and answer us one by one and clear our doubts about this topic. So I request you all, please free to ask questions in this session and clear your doubts without any hesitation. But first of all, I am glad to give a brief knowledge about Professor Sanjeev Sharma achievements, and then we continue with our chief guest and our class. So first of all, their academic achievements, and then we talk about their extracurricular achievements.
Professor Sanjeev Sharma is a PhD, MPhil, and is also LLB. He did his UG from Shri Ram College of Commerce and studied his PG at Delhi School of Economics. He has 14 years of vast experience in teaching in economics. Professor Sharma is recipient of 5 national and 1 international award for its vocational skill. Certification Startup Institute of Professional Lifeguards at Delhi. Professor Sharma has chaired 11 national level and international level seminars and conferences, has co-chaired 2 national level seminars and has been keynote speaker in 5 national level seminars. He has also written 10 books on economics and finance for UG, PG level and IAS aspirants, while 6 books for in print. He has presented 6 papers in national and 2 in international level seminar, whereas his 13 papers has been published and 18 articles in newspapers and international news magazines. He is also chief editor of International Journal of Management and Technology Research. Professor Sharma is and has been visiting and guest faculty in various reputed institutes as well as couple of universities like JJT University, IMA, JIMS, Skyline Business School, etc. He has also conducted 10 workshops on life science or life skills like stress management, first aid for heart attack and how to avoid, science of drinking water, etc. Other than academics, he also has many extracurricular achievements too. He is certified lifeguard from Royal Life Saving Society, PARC, and certified swimming coach in A grade from NS National Institute of Sports, Patiala, and Sports Authority of India. Since 2003, he has trained almost 11,000 plus first aids in the country, including Indian Army jawans and officers and their school children. He has trained around 1,500 plus people, teaching them how to save drawing. People fulfill his moral duty towards society and social responsibility. He has been swimming champion for a decade of Gwalior district and KVS in his age group. He has been awarded Best Sportsman of the Year of Gwalior District Sports Council. He has been also chess champion of Delhi University in the year 2000. He was captain swimming, water polo and chess of Sri Ram College of Commerce. Professor Sharma has also won a silver cup and bronze medal for his 2 poems at World Convention and Symposium of Poetry, Washington DC in 2003. And at last, I want to share my personal views that कहते हैं ना कि क्या कहते हैं बच्चे के पाँव पालने में ही नजर आते हैं, तो उसी तरह प्रोफेसर शर्मा जी भी हैं जिन्होंने अपने कॉलेज डेज में अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाया और उन्होंने फर्स्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फर्स्ट कल्चरल फेस्टिवल और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को लीडरशिप और उसका मैनेजमेंट करा. एंड थैंक यू all of you and have a good day. And now sir has taken charge and continue the class. No, it's so nice of you for सर being कोई so इतना भी मतलब it's been सर आपके really बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में पढ़ के. thank you very much for such a nice and kind introduction of mine. एक स्टार्टअप मेरा और है, that is SCY School of Empowering Young Entrepreneurs. So that's a special course जिसमें the only of its kind institute of entrepreneurship जहाँ पे हम entrepreneurs को जब enroll करते हैं, they don't have a
they don't have to give an exam. So it's an exam-free diploma course, and where you really, after its currency, you get currency only when you become an entrepreneur. So it's a practical based thing. So that is one. Second, I'm from Shriram College of Commerce, SRCC. शायद commerce वाले जो बच्चे हैं, they must be knowing about SRCC and Delhi School of Economics. They are Yes, one of sir. the best in the country. So, and from there only I got faculty and the teachers who really mentored me. English is comfortable or हिंदी में कंटिन्यू करो प्लीज, सॉरी. इंग्लिश में कितना कंफर्टेबल है आप लोग कि हिंदी में आ जाऊं? मुझे हिंदी में बहुत सुंदर. हाँ, तो बोलना होता है ना विपुल, ऐसे मुंह में रसगुल्ले रख के नहीं हंस देते हैं ना, नहीं सर, मैं मुस्कुराते हैं. दोनों में कंफर्टेबल हूँ. गुड, वेरी गुड. हाँ, तो मेरे को जो टीचर्स मिले, they shaped me very well actually. उन्होंने मुझे क्राफ्ट किया, that was amazing and I'm thankful कि उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमेशा ओरिजिनल वर्क में विश्वास रखना, कॉपी पेस्टिंग नहीं. इसलिए जो मेरा सीवी है उसमें मैंने जो अपना मिशन स्टेटमेंट रखा है कि मैं क्या करता हूं, उसमें मैंने यही रखा है कि when you are born original, don't die for a copy. ओरिजिनली पैदा हुए ना, आपकी कोई कॉपी तो है नहीं. तो जब ओरिजिनल पैदा हुए तो फिर कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट बी ओरिजिनल. क्योंकि जब आप ओरिजिनल वर्क की वैल्यू करते हो, ओरिजिनल वर्क पढ़ते हो, ओरिजिनल वर्क ही काम करते हो, तो यू लर्न एंड आपकी रिस्पेक्ट अलग होती है. पीपल रिकॉग्नाइज यू और आपको उस लेवल पे ही फिर रिस्पेक्ट करते हैं. अदरवाइज पीपल डोंट रिस्पेक्ट मोर. ठीक है. सो दैट इज वन. सो अब जितनी भी इज्जत मिलती है कहीं भी, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीचर्स कि उन्होंने मुझे उसी टाइम पे सिखा दिया था ओरिजिनल वर्क का इम्पोर्टेंस. तो इसलिए कुंजियों से, गाइड से नहीं पढ़ा, हमेशा बुक से पढ़ा हूँ और क्लासेस में ही पढ़ा हूँ, है ना. सो दैट इज देयर. लाइब्रेरी दूसरा घर हुआ करता था जहाँ पे बुक्स बहुत होती थी. सो इट वाज लाइक दैट. एंड दिस ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनलिटी है, इसके ऊपर इतना प्रवचन में इसलिए दे रहा हूँ कि यही चीज है जो आपको एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करती है. अगर आप में ओरिजिनलिटी नहीं है तो यू कुड बी लाइक एंड फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, डोंट टेक इट पर्सनल बट दैट्स एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है, जैसे मार्केट में आप जाते हो तो आपको 10 समोसा बनाने वाले मिलते हैं, है ना. और ट्रेडिशनल समोसे हमारे सिर्फ आलू के चलते हैं. Yes, sir. पर जो इंसान ओरिजिनलिटी में विश्वास रखता है, उसने क्या किया, उसने आलू के साथ मटर मिलाया. ठीक है. किसी ने कहा नहीं, मेरे यहाँ पे तो सिर्फ मर्सिडीज वाले रुकेंगे, तो उसने उसमें ड्राई फ्रूट भी मिला दिया. ठीक है. कोई एक मेरे ऐसा देसी सा इंसान था, उसने कहा यार वो छोड़, मेरे यहाँ तो सभी आ जाए तो ठीक है, अगर मैं सामान बेचूंगा तो अच्छा, तो मर्सिडीज वाला भी रुकेगा. तो उसने क्या किया, उसने डिफरेंट टाइप के समोसे और ज्यादा बना दिए. चाउमीन के भी समोसे बना दिए, पिज्जा का भी समोसा बना दिया है, पनीर मखानी का भी बना दिया, तंदूरी पनीर का बना दिया, 50 तरीके के उसने समोसे बना दिए. आई मीन दैट इज ओरिजिनलिटी. व्हेन यू बिलीव इन ओरिजिनलिटी. और जो इंसान, आई बिलीव आपको जितना मैंने देखा, ही इज अर्निंग वेरी गुड. और उसका अलग स्पेशल नाम है. पीपल रिकॉग्नाइज हिम विद अ स्पेशल नेम. ठीक है ना. नहीं तो समोसे वाले हिंदुस्तान में जो बिजनेस आप खोल लो, ट्रस्ट में, अगर सिंसियरली उसको परस्यू करते हो तो आप कमाते हो पैसे. ऐसे नहीं है कि आप नहीं कमाओगे. पर जो ऐसे डिफरेंट ओरिजिनल वर्क लेके आता है, वो और बहुत ज्यादा कमाता है. बट यू हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क, हार्ड वर्क टुवर्ड्स इट, तभी आपका वेंचर सक्सेसफुल होगा, है ना. इट्स जस्ट लाइक आपकी माता जी ने या मेरी माता जी ने जब हम पैदा हुए तो कितना ध्यान रखा, है ना. क्यों? बिकॉज शी हैज बीन सिंसियर
शी हैज बीन हार्ड वर्किंग विद अस। तो जो हम एक प्रोजेक्ट थे लाइफ में कि एक बच्चा होना चाहिए फैमिली में सो दैट लाइफ बिकम्स गुड, फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, तो किड्स आर लाइक अ प्रोजेक्ट, हाँ, कि बड़ा होके नाम रोशन करेगा, ये एक अच्छा इंसान बनेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो उसमें पेरेंट्स की जो सिंसियरिटी और हार्ड वर्किंग होती है अपब्रिंगिंग में, इट इज सिमिलर टू एन ओरिजिनल वर्क यू अप्लाई फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप, अपने बिजनेस के लिए जो आप लगाते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है ओरिजिनल वर्क का। हमारे डिस्कशन में मेरे प्रवचनों के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, प्लीज नोट इट डाउन, और एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन आई एम फिनिश्ड, है ना, तब हम एक 15-20 मिनट का हम जो है एक Q&A राउंड रख लेंगे। उसमें आपका जो भी प्रश्न हो वो पूछना, और संकोच मत करना कि कहीं एक क्वेश्चन सुन के कोई हंसेगा तो नहीं, राइट। एज अ स्टूडेंट सबसे पहली चीज यही होती है, यार पूछूं नहीं पूछूं, ये हंसेगा वो हंसेगा, पता नहीं कैसा लगेगा, टीचर क्या कहेगा कि कैसा बेवकूफ आदमी बच्चा आ गया, से इतना भी नहीं पता क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो अभी आप सब स्टूडेंट हो तो मैं बेटा ही बोलूंगा क्योंकि मेरी आदत है ना। तो बेटा देखो ऐसा है, देसी भाषा में बात करें तो आप कुछ सीखने के लिए आए हो, है ना, मैं कुछ सिखाने के लिए आया हूं। तो जब तक आप पूछोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, है ना। अब हमारे सामने एक ट्रेड ऑफ होता है, और ट्रेड ऑफ ये है स्टूडेंट के सामने कि इंपॉर्टेंट क्या है, सीखना या सामने वाला जो हम पे हंस रहा है वो मजाक, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीखना या मजाक? एक एक करके जरा बता दो यार। सीखना सर। गुड, इम्पोर्टेंट तो सीखना है, Very लेकिन good. थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है सर। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जी, उसको अपने माइंड से बाहर निकाल दो, थ्रो इट आउट। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, सीखना इंपॉर्टेंट है या उनके मजाक बहुत, जिसके वजह से क्वेश्चन नहीं पूछते हम? बाकी 4 लोग और हैं, उनके आंसर्स नहीं आए, अनम्यूट एंड से। सर मजाक बना के कुछ सीख पाएंगे हम। गुड, दैट्स अनदर आउटलुक, पर ठीक है, गुड। यस भूपेंद्र। सर वो सर मैंने एक मर्फीज लॉ पढ़ा था। हाँ हाँ, तो सर मर्फी लॉ का मतलब ये होता है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग देन इट विल बी रॉन्ग। तो सर वो अगर हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर कुछ चीज करते हैं तो या तो लोग अगर हम पे हंसेंगे भी तो भी हम जीत जाएंगे, मतलब वो ऐसा मतलब वो बताता है। और सर वो जो बर्फी मूवी बनी है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है। तो सर मैंने भी एक मेरा आइकॉनिक नेम ना मर्फी रखा हुआ है Very ताकि good. कि हाँ मजाक। वेरी गुड। यस, देखो फॉरमोस्ट इज लर्निंग। कोई कुछ भी बोले, हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। लाइफ आपकी है, मेहनत आप कर रहे हो, फल आपको मिलेगा, कोई और तो ले नहीं सकता, ठीक है। मुझे याद है जब मैं ग्वालियर में था, उस टाइम पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी ज्यादा स्कूलों में। स्कूल भी और लोकल उसमें तो छोड़ दो, है ना। हम ग्वालियर तुम बोलते थे, हम तो बोलते थे गवालियर, ठीक है। बात चलती थी गवालियर, वहां पे एक जगह है जिसका नाम गवालियर भी है ना, टम्पू वाले चिल्लाते थे गवालियर गवालियर गवालियर। तो तो उस गवालियर के टाइम पे मैं 5वीं 5th क्लास में गया था जी, ठीक है। तब उसके प्रीवियसली आई वाज इन एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, दिल्ली का बेस्ट स्कूल है, ठीक है। और वहां पे इंग्लिश में ही सब चलता था, सो आई वाज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। अब जब मैंने इंग्लिश में बात करनी जब मैं बात करता था इंग्लिश में स्कूल में बच्चों से, टीचर्स तो चलो थोड़े खुश हो जाते थे कि एक अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा है, पर क्लासमेट्स कहते थे बट मार रहा है।
अपने आप को दिखा रहा है कितनी अंग्रेजी आती है. So I'm from that period और खूब मजाक बनाते थे बच्चे, but let it be, है ना, let it be. मेरे को फर्क नहीं पड़ा और रिजल्ट ये रहा कि मेरी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्किल्स ठीक रहे, मेरी लैंग्वेज के जो स्किल्स है वो ठीक रहे, तो प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना. बाकी को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत टाइम में वो अपग्रेड करे. So again, learning shall be more focused than anything else. आप लर्निंग पे फोकस करके काम करोगे तो आप ज्यादा सीखोगे, जल्दी सीखोगे और उसी हिसाब से आप अपने लाइफ के प्रोफेशनल पाथ पे आगे बढ़ोगे. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज यू विल वेस्ट टाइम एंड टाइम इज मनी. ये याद रखना, टाइम इज मनी, ठीक है ना. सो लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हैविंग एन ओरिजिनल आइडिया. ओरिजिनल आइडिया के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है. हमारे लॉ में एक चीज पढ़ाई जाती है, ब्लड हाउंड करके एक वर्ड आता है, दैट यू हैव टू बी अ ब्लड हाउंड. ब्लड हाउंड मतलब जो शिकारी होता है, जो शिकार करता है. So learning has to be like a bloodhound. ये आपको ढूंढना है कि आपको किस चीज में से कैसे लर्निंग लेनी है. So जब आप रोड पे चलते हो, आप कहीं बैठते हो, उठते हो, वो सारी चीजें हैं जो आपको लर्निंग दे सकती है. So लर्निंग का जो काम है वो 24/7 का काम है. There is no off and there is no holidays. अब आप चलते हुए, सड़क पे चलते हुए जा रहे हो या गाड़ी चलाते ड्राइव करते हुए जा रहे हो और अगर आप विजिल हो तो हो सकता है आपके माइंड में कोई आइडिया स्ट्राइक कर जाए और आप एक उसके ऊपर एक अच्छा प्रपोजल फॉर्च्यून बना सकते हो. द मेनी थिंग्स जिसको आप ले सकते हो और आपको करना चाहिए. लाइकवाइज आप कहीं बैठे हो रेस्टोरेंट में, कोई चीज आपने देखी, ऑब्जर्व किया, कस्टमर्स को ही देखा आसपास, तो आपको हो सकता है उन कस्टमर्स को देख के आपको कोई बिजनेस आइडिया स्ट्राइक कर जाए एंड यू मेक इट. लाइक पहले हमारे देश में आज भी है, पर इनिशियली तो ये था कि चाय के साथ मट्ठी ज्यादा लेते थे लोग, है ना. मट्ठी के बाद वो फैन आ गए, फैन के साथ रस आ गए. बट टुडे इफ यू सी जो चाय पॉइंट है, चाय पॉइंट has improved और उन्होंने चाय के साथ पराठे शुरू कर दिए. आप किसी अच्छी शॉप में चले जाओ जो स्पेशली चाय के लिए बनी है, उसमें वो चाय के साथ और भी कई तरीके के स्नैक्स दे रहा है. सो दैट इज समथिंग. जो वो एंटरप्रेन्योर था वो विजिलेंट था, ओपन फॉर लर्निंग था और उसने जो है इमीडिएटली उस चीज को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, उसने इस कंसेप्ट को उसने इम्प्लीमेंट किया. रिजल्ट चाय वाला है ना, बहुत अच्छा नाम है. चायोस एक और बहुत अच्छा ब्रांड बन के आया बाहर. सो MBA चाय वाला, MBA चाय वाला, यस, वेरी ट्रू. सुट्टा पर. गुड. दैट इज समथिंग कॉल्ड लर्निंग एंड बीइंग विजिलेंट. कि आप अपने लिए सीरियस हो. यू हैव टू बी सीरियस फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स, है ना. आप अगर अपने लिए सीरियस हो तो बाकी सारी चीजें जो आपके वेसिनिटी में है, जो आपके इमीडिएट टच में है, वो सारे लोग अपने आप अलाइंड हो जाते हैं आपके साथ. अगर आप अपने लिए सीरियस नहीं हो, अपने लिए फोकस नहीं हो, हेवे हो, तो आपके आसपास जितने भी लोग आपसे अलाइंड नहीं होंगे एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. दे आर ऑब्स्टिकल्स देन. अनदर बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, इट्स अ स्टिग्मा कॉल्ड, जो स्कूलों से सुनते आ रहे हैं. मुझे नहीं पता आपने सुना नहीं सुना कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, राइट. यस सर. So you have to rise ये above हमें this स्कूल dictum. से सिखा दिया जाता है कि
अच्छे नंबर लाओगे तो ये बनोगे, ये मिलेगा। यस। यस सर। तो इस स्टिग्मा के ऊपर उठो और आगे की जो जनरेशन आ रही है उनके साथ भी जब इंटरैक्ट करते हो तो उनको भी समझाओ दैट इज नॉट इट। इंडिया वाज नॉट फॉर वर्क क्लास और एम्प्लॉय क्लास, जिसको ब्रिटिशर्स ने एंड जो अरब वर्ल्ड से जो बारबेरियंस आए थे उन्होंने जो स्लेव क्लास बनाया था हमको। सो इनिशियली दे वर कॉलिंग अस स्लेव क्लास। वो तो बाद में टाइम ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा इनको स्लेव से ऊपर के एम्प्लॉय बोलना पड़ेगा तभी काम बनेगा, सो वी बिकेम एम्प्लॉय क्लास। इन द हिस्टोरिक एरा इंडिया हैज बीन मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास नहीं थी ज्यादा, बहुत कम थी। दैट वाज कन्फाइंड टू द पैलेसेस, राजमहल वगैरह तक ज्यादा सीमित थी, है ना। या थोड़ा सा बिजनेस क्लास में हेल्पिंग हैंड के रूप में थी। अदरवाइज इट वाज ओनली एंटरप्रेन्योर्स, एनी फील्ड दे वर एंटरप्रेन्योर्स एंड मेजॉरिटी वर एंटरप्रेन्योर्स। और पर्पसफुली हमें खत्म किया गया, हमारी फिलॉसफी खत्म की गई। और जो लर्निंग की जो एटीट्यूड है, जो मैंने आपको बताया, लर्निंग एटीट्यूड एंड बीइंग ओरिजिनल, वे दो चीजें हमसे छीन ली। ये दोनों चीजें हमसे छीन ली तो हम क्या बन गए? एम्प्लॉय क्लास बन गए। इट्स वेरी सिंपल ऑन दैट। सो टू बिकम एन गुड एंटरप्रेन्योर you need to be a bloodhound, जो लर्निंग के लिए जो है हंग्री है। one is hungry for learning and that is very very sorry और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीवी देखते हो, आप न्यूज मैगजीन्स पढ़ते हो, आप न्यूज पेपर पढ़ते हो, बी अ ब्लड हाउंड। ढूंढो लर्निंग क्या मिल सकती है, कहां से बिजनेस आइडिया मिल सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों के साथ घूमने गए, फैमिली के साथ घूमने गए, दैट इज फाइन। आप एक फैमिली टाइम या फ्रेंडशिप टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, बट उस टाइम भी यू कैन विदाउट शोइंग टू एनीवन, बिना किसको दिखाए आप लर्निंग कर सकते हो। अब जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, मेरे कई जानकार हैं, मैंने उनसे आइडिया शेयर किया। मैंने कहा इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस में इतना अच्छा आपने काम कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, कुछ कर रखा है, मैंने कहा आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल, लेट्स वर्क ऑन इट। आइडिया मैं देता हूं, काम आप करो और सॉफ्टवेयर आप बनाओ, टेस्टिंग करते हैं, बेचेंगे मिलके साथ में, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। एंड द आइडिया वाज लेट्स रिड्यूस द यूसेज ऑफ पेपर एज बिल्स, इनवॉइस को खत्म किया जाए सो दैट वी कैन सेव ट्रीज। So that will be a green technology. But हमारे देश में वही जो स्टिग्मा जो मैंने था, ओरिजिनलिटी एंड लर्निंग, पीपल दे डोंट हैव एम्पल। उनको चाहिए एक फिक्स सैलरी आनी चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ ईज में रहे। एंड आई टेल देम कि इट्स ऑल्सो नॉट गारंटीड। अगर बिजनेस में प्रॉफिट गारंटीड नहीं है तो जॉब में भी जॉब गारंटीड नहीं है। देयर आर एम्पल फैक्टर्स जिससे आपकी जॉब जा सकती है। आपसे बढ़िया एम्प्लॉय आ गया दूसरा, आपकी जॉब खत्म। ठीक है, भगवान ना करे कोई मेडिकल इशू आ गया, आपकी जॉब खत्म। है ना। देयर कैन बी अनदर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनकी ऐसे जॉब भी जा सकती है, सो भी कोई गारंटी नहीं है। रिस्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन एवरी डोमेन। कोई ये बोले कि इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में रिस्क बहुत ज्यादा है या इसमें कम है, आई डोंट सब्सक्राइब, आई डोंट एग्री एट ऑल, एट ऑल। अगर आपने बीए हिंदी किया है और आपने वाकई ईमानदारी से बीए हिंदी करा है, आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो।
बहुत काम है, बहुत काम है। आपने बीए संस्कृत करा है जिसे लोग बोलते हैं कि बीए यूजलेस काम है, नहीं, बहुत काम है, करने वाले के लिए बहुत काम है। एंटरप्रेन्योर बन के काम करने के लिए बहुत है इन डोमेन्स में भी। ऐसा नहीं आपको नौकरी करनी पड़ेगी, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, और ये एजुकेशन लेने के बाद इसी फील्ड में बहुत काम है। बट द थिंग इज व्हाट यू हैव लर्नड, हाउ कैन यू डिलीवर, are you original for yourself? Matter ends. Everything is solved, right? Sorry. So that makes an entrepreneur a different species. Entrepreneurs are different species on earth. कुछ हैं जो प्योर कैपिटलिस्ट हैं, लाइक अमेरिकन्स एंड ऑल, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स एंड ऑल, और वो जो स्पीशीज है प्योर कैपिटलिज्म की, they are blind for money, and I believe जो entrepreneur है he is not blind for only money. जो इंडिया में थे they had a human touch, so they were very rich, but at the same time they were humans, unlike pure capitalist कि जो टॉक्सिक भी बेच के पैसे कमा लेंगे, they don't care whether you live or you die. Because population is a subjective matter, और आज कम है कल ज्यादा हो जाएगी, so incentives देंगे तो लोग करेंगे। It's as simple as this, है ना। चाइना के पास जो पॉपुलेशन ज्यादा थी, उन्होंने इंसेंटिव्स देने बंद कर दिए। उन्होंने कहा if you have more than one child, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने बेनिफिट के लिए, पॉपुलेशन की स्टैग्नेट हो गई। आज उन्हें लग रहा है उनके पास यूथ कम है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उन्होंने दोबारा कर दिया। ऑल दोस पीपल हु गो फॉर सेकंड चाइल्ड, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिलेंगे, और इतने लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, लोगों ने दोबारा शुरू कर दिया। सो दिस इज एन आउटलुक विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ऑफ प्योर कैपिटलिज्म। सो when you go for entrepreneurship, the basic ingredients I have told you, लर्निंग एंड बी ओरिजिनल। और ये कब होगा? जब आप 100% विजिलेंट हैं, चलते हुए, उठते बैठते। सो दैट हेल्प्स यू लॉट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई बिलीव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज, हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज, रेड ओशन स्ट्रेटेजीज। रेड ओशन इज अ स्ट्रेटेजी वेयर आप एंटर करना चाहते हो ऐसी मार्केट में जहां पे वो मार्केट मैच्योर है। लाइक आपने सीमेंट की शॉप खोल ली। सीमेंट इज अ वेरी मैच्योर्ड मार्केट, हार्डवेयर इज अ वेरी मैच्योर मार्केट। उसमें एस्टैब्लिश होना डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज माइंड इट। इट्स डिफिकल्ट। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, आप इनवॉइस को ग्रीन कर दीजिए, ठीक है। वो ग्रीन कैसे होगा? इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू आर इंटरेस्टेड, आई कैन सिट विद यू, वी कैन शेयर द बिजनेस प्रपोजल एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। ऐसा नहीं है। आपने इनवॉइसिंग को ग्रीन कर दिया, ग्रीन करने से क्या हुआ? उस फील्ड में भी कोई ज्यादा है नहीं लोग, तो एस्टैब्लिश होने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे लोगों ने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करे स्कूल्स को, कि स्मार्ट बोर्ड बना देंगे जी, आपका जो चौक और डस्टर का खर्चा बच जाएगा, एंड इट विल बिकम मोर नीट क्लासेस। देखो हमारे टाइम पे हम देखते थे नीचे पूरे चौक का बुरादा गिरा हुआ करता था, है ना। मास्टर जी के हाथ चौक में रंगे होते थे, हमारे भी रंगे, खैर बहुत डीयू वगैरह में खूब पढ़ा है, एसओएल में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में खूब पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स। तो हाथ ऐसे चौक से गंदे रहते थे, पैंट तो डेफिनेटली चौक लगाई होता था। So somebody came up with a smart board idea, उसने स्मार्ट बोर्ड बेचना शुरू किया, आज बहुत स्कूलों में रिप्लेस हो गया दैट सिस्टम। दैट इज अ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, कि मार्केट में कोई है नहीं, अगर है तो बहुत कम लोग हैं, एंड यू कैन टैप इट, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द गैप।
So the next part is when you want to choose for a particular project, choose where you find gaps. इसलिए because मैंने पहले बोला time is money. Don't waste your time in competition, competing with other. है ना? Competing with other, ज्यादा ऐसा business लो जिसमें competing with other कम हो, so that you don't waste your time in competition, rather you focus more time in product development. आप अपने product को develop करने में वो time लगाओ. That is fruitful. That is good. Like सोनम जी ने केक बनाना शुरू किया, सीखा, है ना? इनकी वैसिनिटी में ज्यादा केक नहीं मिलते होंगे, इनको बेनिफिट भी मिला होगा उसका. लाइक मैंने भी ऑनेस्टली इस लॉकडाउन में मैंने भी केक बनाना शुरू किया. हाँ, मैं भी केक थोड़े मोटे बना लेता हूँ, बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं, बेसिक 2-3 फ्लेवर के मैं केक बना लेता हूँ. आपकी आवाज म्यूट पे है सोनम जी. यू आर ऑन म्यूट. आप कुछ कह रही हैं? आप म्यूट पर सर ओके सर. सर कौन से फ्लेवर के बनाते हैं सर आप केक? 2-3. मैं चॉकलेट ज्यादा बनाता हूँ बिकॉज माई किड लाइक माई सन लाइक्स. सर हमारा मतलब ड्रीम है. ओके सर ओके. ओके, नहीं मैं क्रीम केक्स नहीं बनाता हूँ. आई मेक अदर. सर हमारा ड्रीम है ओके, कि कभी जाके एक डे. गुड, वेरी गुड, हेलो very good. Yes, very good. You must pursue that dream. And चॉकलेट फ्लेवर. yes, chocolate flavor. I'll make it. And that's a very basic cake, not a very flamboyant kind of जो market में मिलते हैं. बहुत flamboyant से नहीं है. It's a very basic one. But he likes कि I bake for him. So that is the thing कि you identify that particular gap area. And once you identify a gap area, you start working for it. Use more time for product development. Like मैंने जब सीखा उसके बाद I started innovating, you know. आदत खराब है तो मैंने बहुत से केक खराब भी किए, बेटे को पसंद भी ना. But लर्निंग थी, एक लर्निंग करनी थी मेरे को. मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के भी केक बनाने की कोशिश करी है ना. चोको चिप कुकीज डाल के भी खूब बनाए हैं केक्स. एंड सो ऑन एंड सो ओके फॉर्थ. सर ओके. सर मैंने बिस्कुट डाल के भी बनाए थे. वेरी गुड. यस. सो दैट इज देयर ना कि वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट rather than competing. अब मेरा जो पहला स्टार्टअप था दैट वाज ओरियो बिस्किट. प्रोफेशनल लाइफ गार्ड्स, है ना. एंड IPLG जब शुरू किया उसके पहले आई हैड सम एक्सपीरियंस. इट वाज रिलेटेड टू माय डोमेन, स्विमिंग से रिलेटेड था. एंड आई डिड माय कोर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. पिताजी ने भेज दिया कि ये करके आओ. At least you can save drowning people, we can save life. You'll be more productive. ठीक है जी. वो कोर्स करके आया. उसके बाद 2009 में when I left my deanship, I was dean of a management college and I left it because I found कि मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रवचन ही देता मास्टर एंटरप्रेन्योर तो है नहीं, है ना. MBA के बच्चों को लगता था. ठीक है. Then I started IPLG. And why IPLG? Institute of Professional Lifeguards. हमारी उसकी वेबसाइट है. It's a award-winning institute, only one in the country in its domain जिसको awards मिले हैं. So वो शुरू किया and start करने के reasons थे. पहला it was from my domain, so I had my specialization. तो अगर मैं किसी को hire भी करता हूँ तो nobody can make fool out of me. And I know it thoroughly. Number one. Second important aspect was the market. It was a blue ocean strategy. और मार्केट में उस टाइम पे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स थे जब मैंने शुरू किया. आज 5 या 6 प्लेयर्स हैं. इससे ज्यादा नहीं है अभी भी इंडिया में. Then I designed my product uniquely.
इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे यूनिक हैं। एज अ रिजल्ट अगर कोई दूसरी एजेंसी से भी करता है इनिशियली कोर्स, वो बाद में मेरे पास ही आता है। ठीक है, सो समवेयर इन द so if even others are creating new customers, they will become my customers sooner or later, today or tomorrow, है ना? Then the market size, अब बात होती है market size क्या है? So market size is like billions of dollar, है ना? तो billions of dollar का जो है मेरा I have this market size. My products are certification in lifeguards, swimming coaches, and then can you just excuse me for a minute? I've got an important call. Just a moment, please. Okay. Hello. Hello. यार मैं वेबिनार के बीच में हूँ, I'm on a meeting. ओके सर, ओके ओके। Yes, sir. Thank you for your patience. So market size is billions of dollars, like swimming coaching certification, then first aid certification courses, and then gym instructor courses हैं certifications में, and even in gym instruction, it's just like कि training without injury and without steroids. ठीक है ना? तो उसमें आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल किल योरसेल्फ इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, वो आपकी बॉडी खराब कर देंगे, एंड सूनर और लेटर देन यू हैव टू गो ऑन डायलिसिस एंड ऑल। किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर ज्यादा होते हैं उसमें। सो दोस काइंड ऑफ थिंग। एंड इफ आई से कि कंट्री में 1 लाख लोग जिम इंस्ट्रक्टर कोर्स कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए फॉर कैटरिंग द मार्केट। ठीक है, मेरा एक कोर्स 40,000 रुपए का है, 1 लाख लोग करते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट 400 करोड़। और अगर मैं बहुत सिंसियरली, बहुत प्रोफेशनली अगर को परस्यू करूंगा, कोर्स को, काम को करता हूं, तो बीइंग पेसिमिस्ट, अगर मैं पेसिमिस्ट मान के भी काम करूं और कहूं कि मेरे कोर्स को 10,000 लोग करते हैं ओवर माय लाइफ टाइम, तो 10,000 लोग इंटू 40,000 रुपए इज, अगेन यू कैन इमेजिन, इट्स सफिशिएंट मनी, बहुत पैसा है। तो इसमें स्कोप की भी कमी नहीं है। सो व्हेन यू लॉन्च अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, you must also understand कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी भी कितनी है, अभी कितनी है, और आप कंट्रीब्यूट करके कितनी बढ़ा सकते हो, है ना? मेरा मानना है कि
जिम हर किसी को करना चाहिए, लेकिन एक सही ट्रेनर के अंडर जो आपको इंजरी फ्री ट्रेनिंग कराए, जो आपको बिना स्टेरॉइड्स के ट्रेनिंग कराए, तो आप हेल्दी रहोगे। बीइंग हेल्दी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अभी जो ट्रेनर्स हैं उनका फोकस होता है स्टेरॉइड्स पे, उनको ज्यादा लोअर बैक इंजरीज या आपकी मसल बर्स्ट हो जाती है, चाहे मसल बर्स्ट आपकी बाइसेप की हो, चाहे मसल बर्स्ट आपके चेस्ट पे हो। तो ये बहुत कॉमन और लोग उसको क्योंकि उन्हें खुद को स्ट्रेटेजी हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट इन इट। तो जब मैंने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया फिटनेस इंस्ट्रक्टर का, आई डिड माय डिप्लोमा फ्रॉम जर्मनी। आई एम लाइसेंस बी, मतलब आई कैन लाइसेंस में भी। तो जब साइंस पढ़ी नहीं सर, उसके बाद फिर हमें नहीं आ रही। ग्रेट। So, and then I launched this product after 8 months around. So when you launch a particular product, अगर आपका उसमें स्पेशलाइजेशन है तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। Nobody can make fool out of you. And it's also very important. ये तो competitors and rivals क्या करते हैं, आपको मिसगाइड करके, मिसलीड करके आपका प्रोडक्ट खत्म कर सकते हैं। जबकि आप अगर ऑन द अदर हैंड वो इसलिए करें बिकॉज आपके प्रोडक्ट में बहुत स्ट्रेंथ है, आपका प्रोडक्ट बहुत वाइबल है और उनको खत्म कर देगा, इसलिए दे डू ऑल दीज गिमिक्स। तो जब आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, दीज शैल बी अगेन इन योर नोटिस। आपको पता होना चाहिए, आपको फोकस करना है कि हाँ मेरे को जो है ये सब मेरे पास होना चाहिए। आई मस्ट थिंक ऑन दीज टर्म्स। एक और जो बहुत बड़ा इशू जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आता है, बिकॉज वी आर मेजॉरिटी आर फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज, है ना। सो बीइंग इन अ मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली, फाइनेंस इज अ मेजर इशू। फाइनेंस बहुत मेजर इशू है। एंड मैंने जब स्टार्टअप किया अपना पहला प्रोजेक्ट, देन आई रियलाइज्ड कि टू कट डाउन माय फाइनेंस और फाइनेंस रिक्वायरमेंट, सच ए प्रोडक्ट, सच ए डोमेन की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मिनिमम हो। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो मेरे को रेगुलर हर महीने खर्च करनी ही करनी है। मैंने उसका बर्डन अपने ऊपर से हटाया, क्योंकि जब फिक्स कॉस्ट का बर्डन होता है तब आप एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप ओवरबर्डन हो जाते हो। एंड बिकॉज वंस यू गेट ओवरबर्डन, आपके फाइनेंसेस टूटने लगते हैं, तो आप डेस्परेट हो जाते हो, आप रेस्टलेस हो जाते हो और आपका फोकस अपने प्रोडक्ट और उसको बेचने से ज्यादा रिकवरी में लग जाता है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं अपने नियर वेसिनिटी से, तो वो आपको ब्रेक डाउन कर सकता है। बहुत एंटरप्रेन्योर्स के साथ यही होता है। एंड दैट वाज द रीजन आई स्टार्टेड दैट। माय सेकंड वेंचर वाज SCYE, जो मैंने शुरू किया अंडर स्कूल ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। उसके अंदर मैंने स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या स्कूल शुरू किया। इसमें भी that is again teaching is my domain, so nobody can make fool out of me, and I'm myself being an entrepreneur, so people cannot take leverage out of me. I know about it thoroughly. सारे ups and downs देखे हैं, चीजें समझी हैं।
जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। हर इंडस्ट्री के अपने सीक्रेट्स होते हैं, अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, पर एंटरप्रेन्योरशिप का जो नियम और कानून है, आई एम फॉलोइंग ओनली दैट एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दैट। सो व्हेन यू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट कि इसमें काम करना, यू मस्ट बी थॉरो विद इट कि हाउ मच इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट उसमें कितनी है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, एंड हाउ मच यू हैव इन योर पॉकेट। और एक टारगेट बना के फिर आप चलते हो तो चलने में बहुत आसानी होती है ना। तो एक रोड मैप तैयार करना विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप वैसे करो तो दैट्स वेरी गुड, है ना। एंड always have belief in you, you can do it. As in you cannot do it. You can do it. बड़े बड़े जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स जो फेल होते हैं, उनके फेलियर के कुछ ही कारण होते हैं। फर्स्ट इज पुअर प्रोडक्ट स्टडी। उन्होंने जो प्रोडक्ट की स्टडी करी थी वो पुअर थी, उन्होंने ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया या तो उसको स्कोप कितना या वो खुद कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी मार्केट एनहांस करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर जो है दैट इज मिसमैनेजमेंट। आप मैनेज नहीं कर पाए, आपने डाइवर्सिफाई कर दिया और आप मैनेज नहीं कर पाए। मेरे पहले वेंचर में आई हैव ऑलमोस्ट 4-5 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं जिसमें मैं डिलीवर करता हूं, एंड I introduce every product only when the first product was stabilized and I was convinced that I can manage another product. उसके बाद ही मैंने दूसरा प्रोडक्ट शुरू किया, मैंने उसको लॉन्च नहीं किया। भले वो आइडिया मेरे दिमाग में था, वो पूरा प्रोसेस मेरे दिमाग में था, चॉक्ड आउट था, बट आई डिडंट स्टार्ट इट। व्हाई? बिकॉज I thought I don't want to close once I start a particular venture. एक वेंचर शुरू किया, उसे खत्म नहीं करना, उसको कंटिन्यू करना है, और उसको वेल मैनेज करना है, उसको सही से काम करना है ना। So it was like that. And the third most important aspect for a failure is your finances. आपकी फिक्स कॉस्ट हाई है, आपने ध्यान नहीं दिया, and then you die. हमारे फाइनेंस में जो सबसे एक जो बहुत रिमार्केबल एग्जाम्पल जो हम शेयर करते हैं फ्रॉम द रिसेंट टाइम्स इज डेवू मोटर्स लिमिटेड कोरिया। डेवू मोटर्स का नाम सुना होगा सबने, नहीं सुना? किसने सुना है डेवू मोटर्स? नहीं सुना। No, sir. नहीं सुना? एक मार्टिस सुना है किसने? मार्टिस छोटी गाड़ी थी i10 की तरह, नहीं सुना? लैंसर? No, sir. अच्छा, ये गाड़ियां आया करती थी अराउंड 2008 के आसपास आया करती थी गाड़ियां। डेवू मोटर्स, उन्होंने कोरियन जायंट है, उसने इंडिया में प्लांट लगाया गाड़ियां बेचने का, कंज्यूमर व्हीकल्स। इनकी बसेस भी आती हैं, इनकी हैवी ट्रक्स भी आते थे। और डेवू मोटर लिमिटेड कोरिया, साउथ कोरिया, वो जो फेल हुआ वो फेल इसीलिए हुआ, उसके पास जो डेट था दैट डेट वाज ऑलमोस्ट $7 trillion, और उसके पास जो एसेट्स थे दैट वाज $2 or $3 trillion, $3 trillion। तो $4 trillion का जो गैप था दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी के लेवल पे होता है, जैसे वो डिबेंचर्स निकाल देते हैं जिसपे इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन लेते हैं, लोन इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स। उन्होंने अपनी कंपनी का बॉन्ड इश्यू कर दिया, उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, एंड लाइक दिस
सो उनका जो फिक्स कैपिटल था बढ़ गया, जो फिक्स कॉस्ट थी, तो फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि फिर इनको वो बिजनेस वेंचर बंद करना पड़ा, है ना। तो बहुत फेमस केस स्टडी है हमारे टाइम की। सो जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के हिसाब से ही आप अपना एक जोन बना सकते हो कि इतना मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इतने टाइम तक जो है इसको कैटर कर सकता हूं और कंफर्टेबली अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देके काम कर सकता हूं, है ना। दैट इज देयर एंड I think I've covered all very important things of entrepreneurship. Last thing which I will also add to you, though आपने MBA नहीं किया, but I think to an entrepreneur these concepts should be clear. ये concept आप लोगों को clear होना चाहिए क्योंकि आपको entrepreneur बनना है। पहला, आप कॉलेजेस में गए होगे, इंस्टीट्यूट्स में गए होगे, कई कंपनीज में गए होगे, वहां पे लिखा था विजन स्टेटमेंट। देखा आप लोगों ने विजन स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है? Yes, sir. और किसने देखा है Yes, sir. ओके, साहिल, विपिन, भूपेंद्र, आपने देखा है मिशन स्टेटमेंट? No, sir. ओके, जब आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हो, यहाँ पे एक काम करना, आप गूगल पे देखना वॉल्ट डिज्नी या आपने नोकिया के ऐड देखे होंगे डेफिनेटली, है ना। नोकिया के Yes, ऐड देखे सबने? नोकिया के ऐड में आता था ह्यूमन टच, याद है ह्यूमन टच? Yes, sir. Yes, sir. तो ह्यूमन टच का था, ह्यूमन टच वाज मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। बट वी टॉक अबाउट विजन, अभी हम विजन स्टेटमेंट की बात करें तो कई बार एडवर्टीजमेंट में भी इनहेरेंटली बता देते हैं कि हमारा विजन क्या है। विजन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम अपने आप को 20 साल बाद कहां देखते हैं। ये आपके सीवी में लिखा होना चाहिए। मैंने अपने सीवी में लिखा, लोगों के सीवी में नहीं मिलता, बट क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा पढ़ाई सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी चाहिए ना। तो मैंने अपने सीवी में सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल, देन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल के बाद मैंने अपना विजन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एंड द विजन स्टेटमेंट सेज अबाउट मी कि मैं अपने आप को 20 साल बाद कहां देखता हूं। हर कंपनी लिखती है ना। सो अपना एक विजन स्टेटमेंट बनाओ। So what is yours? Mine to be known for my work in my domain. I should be a well-known personality in my field, जिसमें भी मैं काम करता हूँ। That is my vision statement, and I've achieved it more or less. Yes, people recognize me in my domain, and the second is विजन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हो। ठीक है ना, आपने कहा आज मेरे को मटर पनीर खाना है, विजन स्टेटमेंट बना लिया, मटर पनीर खाना है, पर अब मटर पनीर के लिए क्या करो, बनाने के लिए कुछ तो करोगे। उसको हम बोलते हैं पनीर आएगा, मटर आएगी। यस, दैट इज नोन एज मिशन स्टेटमेंट। कि हम उसके लिए क्या करते हैं, वो एक स्टेटमेंट बनाओ। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने काम के लिए अपनी डोमेन में जाना जाऊं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट रखा, व्हेन यू आर बोर्न ओरिजिनल डोंट डाई फॉर अ कॉपी। कि जब आप ओरिजिनल पैदा हुए तो कॉपी पेस्ट में विश्वास मत करो, है ना। ऐसे ही वॉल्ट डिज्नी का मिशन स्टेटमेंट है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में, ये उनका मिशन स्टेटमेंट है। तो उनके जो पार्क्स हैं वॉल्ट डिज्नी के, जो डिज्नीलैंड वगैरह हैं, तो डिज्नीलैंड क्या है, एक थीम पार्क है और जो वहां पे आता है खुश होता है। सो दे आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। सो लाइकवाइज अपना मिशन स्टेटमेंट
कि आप अपने विजन को अचीव करने के लिए क्या काम करोगे, वो जॉट डाउन करके लिखो। और उस मिशन स्टेटमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर वो लिखो। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने बारे में। जब अपने बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपके प्रोडक्ट को तो लॉन्च कर ही सकते हो फिर। आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर यू टू लॉन्च। और जितना लिखोगे और एक फॉर्मल पेपर पे लिखोगे, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप उतना अच्छा काम कर पाओगे क्लैरिटी के साथ। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ना। हार्डशिप हर चीज में आती है, ऐसा नहीं है कि देयर इज अ बेड ऑफ रोजेस। हार्डशिप हर काम में है, सिंसेरिटी हर काम के लिए चाहिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने से ईमानदार रहना, तभी कहीं आगे अच्छी जगह पहुंच पाओगे, एक मुकाम तक पहुंच पाओगे, अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो नेवर फूल योरसेल्फ। जैसे हमारे टीचर्स, आई स्टिल रिमेंबर स्कूल टाइम में टीचर्स बोला करते थे कि डोंट चीट, एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? व्हाई यू शुड नॉट चीट इन एग्जामिनेशन? कुछ आइडिया है? हमें एग्जाम में चीटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? और चीटिंग क्यों करनी चाहिए? I'll show you. करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी है, क्यों करनी है? फर्स्ट, व्हाई वी शुड नॉट चीट सर इन क्योंकि एग्जामिनेशन? मतलब चीटिंग करने से पेड़ में, लेकिन एग्जैक्टली। कुछ नहीं। तो हम हमने कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, यस, किसी और की कॉपी लेके पेस्टिंग मार दी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट्स ओनली वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। Yes, sir. नंबर अच्छे आ गए, ठीक है, आ गए, पर क्या आपके पास वो नॉलेज आया जो आपने लिख के सर नंबर हमारे लिए? फादर कहते थे ये बात जब हम पढ़ा करते थे कि नहीं सर, कभी कभी जैसे कॉपी लेके बैठे हुए हैं और सो जाते थे, तो वो कहते Great. That's very good. So that is there. Key learning is again that is important. So you cannot cheat. You must be honest to yourself. क्योंकि आप बेवकूफ अपने आप को बना सकते हो, सामने वाले को नहीं बना सकते। ये हमेशा जिंदगी में याद रखना। If you are cheating only yourself. You're not cheating anyone else. You're cheating only yourself. अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो। तो अपने आप से ईमानदार रह के, सिंसियर होकर हार्डवर्क करोगे। जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, शेड्स बताए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, अगर उनको फॉलो करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने काम में अच्छी सफलता मिलेगी और लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। Yes.
संजीव सर, Yes. आर यू लिसनिंग सर? Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन था कि हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड की क्या वैल्यू है? मतलब अगर लाइफ में कोई चीज, मतलब हम ये सोचते हैं कि जैसे वुडलैंड है या कोई भी ब्रांड है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की, और वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी बहुत वो करता है, और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं वो सेल्स लगती है तब खरीदारी ज्यादा करती है इन सब चीजों की, जो ब्रांड वैल्यू है उन प्रोडक्ट की। तो सर अगर हम ब्रांड में ना जाके सिंपल उसमें देखें तो मतलब अपनी चीज, जैसे हमारा केक ही है बाई चांस, तो हमें उसे ब्रांडिंग देने की क्या जरूरत है? हम ऐसी सिंपल उसमें क्या डिफरेंस आता है ब्रांड और उसमें? देखिए, सबसे पहले तो आप कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग को समझ लाएं। ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग आज ही होती है, ब्रांडिंग पहले भी होती थी। कैसे? नत्थू की जलेबी बहुत अच्छी है, वहां से खाइए कभी? श्याम टिक्की वाला क्या की टिक्की खाई है? समझ रहे हैं? ये ब्रांडिंग है। दिस इज ब्रांडिंग। मॉडर्न टाइम्स में जो ब्रांडिंग है, दैट इज व्हेन यू पेस्ट योर नेम ऑन द प्रोडक्ट, दैट बिकम्स ब्रांडिंग। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे अपना नाम चिपका के देना शुरू कर दिया, दैट इज द स्टार्ट ऑफ ब्रांडिंग। अब इस ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट टीवी पे देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना? आप प्रिंटेड लिफाफे अपने नाम के छपवाएंगे तो ब्रांड तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट अल्टीमेटली ब्रांड इज ऑलवेज डेवलप्ड, चाहे आप पर्पसफुली करो चाहे ना करो, ब्रांड तो डेवलप होगा अगर आप काम करोगे तो, क्योंकि काम करोगे तो नाम होगा, और नाम होगा तो नाम ही ब्रांड है, और कुछ नहीं है। योर नेम इज योर ब्रांड। तो आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपका ब्रांड बन जाएगा। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की IPLG की मैंने आज तक एडवर्टीजमेंट नहीं करी, बिकॉज मेरा नाम ब्रांड बना हुआ है। किसी को करना होता है, दिल्ली NCR में तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन नाम आता है कि अगर तो काम सीखना है तो इस इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो कहीं और चले जाओ। So people come to me like this, and they come to me with my name. So ब्रांड बनेगा एंड ब्रांड होगा, और जितना आप अच्छा काम करोगे उतना अच्छा नाम होगा। लोग एडवर्टीजमेंट इसलिए करते हैं कि दे कैन सेव टाइम, आपकी सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। हाँ जी, छोटी सी वो है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलें, एक सिंपल मतलब पेन है, सिंपल पेन, एक रोलेक्स की घड़ी है, सिंपल घड़ी है, एक रोलेक्स की घड़ी है, मतलब टाइम तो दोनों ही बता रही हैं। तो मतलब मेन वो क्या है, इसका डिफरेंस क्या है? देखिए, नहीं हाँ, मतलब रोलेक्स वक्त बता रही है और सिंपल घड़ी भी तो वक्त ही बता रही है ना सर, जो हम हाथ में पहन रहे हैं। या हम पेन की बात करते हैं तो सिंपल पेन है, वो भी लिखने के काम आ रहा है, और ब्रांड का पेन है कोई भी, वो भी लिखने के काम आ रहा है। देखिए, चीजों में अंतर क्या है मैं वो भी समझा देता हूँ। ये जो आपने बात करी है, हमारे इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है स्नॉब अपील, स्नॉबिश पीपल। स्नॉब वो है, स्नॉबिश मतलब जिनमें ईगो फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। Now to satisfy your ego, you design certain products like Rolls Royce, car made with hands, starting price 5 crores, base model Rolls Royce Phantom,
आपने रोलेक्स की बात की, 50,000 रुपए की घड़ी है, स्टार्टिंग प्राइस मान लेते हैं। दूसरी घड़ी 500 रुपए की है, ठीक है। मॉन्ट ब्लांक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स? आप रेनॉल्ड का पेन खरीदते हो या मॉन्ट ब्लांक का राइटिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो? हैं दोनों पेन, ठीक है। रेनॉल्ड्स का पेन हमारे टाइम में 2 रुपए का आता था, आज शायद 10 रुपए का आता होगा। राइटिंग सर लेकिन नहीं लोग सुनिए जज करते हैं ना हाँ नहीं, उसको। उसको समझिए जो मैं समझा रहा हाँ हूँ, सर, ठीक है ना। यस सर, यस सर। अब मॉन्ट ब्लांक का जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्टार्ट होता है 20,000 रुपए से। अब इसमें 2 चीजें हैं समझने लिए। पहला है ईगो सेटिस्फैक्शन। मेरे पास 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं और बहुत पड़े हुए हैं। अब मैं रेनॉल्ड्स यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी जेब में एक ऐसी चीज रखना चाहता हूँ जिसको रखने के बाद सामने वाला दूर से मुझे सैल्यूट करे। सो आई परचेज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मॉन्ट ब्लांक। मॉन्ट ब्लांक को मॉन्ट ब्लांक बनने का जो सफर है वो ऐसे ही नहीं रहा। वाई मॉन्ट ब्लांक इज मॉन्ट ब्लांक? सिर्फ ये नहीं कि उसके अंदर एक हीरा लगा है, उसके अंदर गोल्ड की निब है या समथिंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट आल्सो, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट मॉन्ट ब्लांक इज यूजिंग इन इट्स राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप एक अमेरिकन मॉन्ट ब्लांक लीजिए या ओरिजिनल यूरोपियन मॉन्ट ब्लांक लीजिए, बॉल पेन लीजिए और लेके 10 साल छोड़ दीजिए। क्या आपका रेनॉल्ड्स 10 साल बाद चलेगा? अगर खाली रखा हुआ है तो नहीं चलेगा। नहीं, मॉन्ट ब्लांक, नहीं चलेगा। मॉन्ट ब्लांक 10 साल बाद उठा के चलाओगे ना, वो वैसे ही चलेगा। दैट इज टेक्नोलॉजी। अभी आप समझे वो 20,000 का पेन क्यों है। रोलेक्स की जो यस सर, 50,000 यस। रुपए की है, उसमें जो गोल्ड लगा उसको छोड़ दीजिए। दैट इज सेपरेट, दैट इज ईगो सेटिस्फैक्शन। पर रोलेक्स की जो घड़ी है वो आपकी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद समय कम नहीं दिखाएगी। घड़ियां पीछे हो जाती हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। सेल वीक होना एक सेपरेट इशू है, लेकिन चलते चलते घड़ी की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने से वो टाइम पीछे दिखाती है। दैट इज अनदर थिंग, दैट्स व्हाई एटॉमिक क्लॉक्स वर इन्वेंटेड, कि एटॉमिक क्लॉक जो है 100 साल में एक बार पीछे होती है। सो दैट इज अ टेक्नोलॉजी। तो रोलेक्स की जो टेक्नोलॉजी है स्टेबल टेक्नोलॉजी है। और जब आप रोलेक्स के टाइम पीसेस यूज करते हैं, यूज नोन एज टाइम पीसेस, नॉट वॉचेस और क्लॉक्स, टाइम पीसेस। तो जब आप रोलेक्स के टाइम पीसेस यूज करते हो तो यू हैव अ गारंटी ये एक्यूरेट टाइम दिखाएगी, ये पीछे नहीं होगी, राइट। सो दैट इज अबाउट इट, कि आप अपना ब्रांड किस लेवल का फिर बनाते हो, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। रोल्स रॉयस हाथ से कार बनाते हैं, वो मशीन से कार नहीं बनती, वो हैंड क्राफ्टेड कार है रोल्स रॉयस की, इसलिए बहुत महंगी है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है साल में, और सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपने रोल्स रॉयस खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी, जरूरी नहीं है आपको कार मिल जाएगी अगर आपके पास पैसे हैं। दे विल शॉर्टलिस्ट यू whether they want to sold their extreme machine to you or not, a masterpiece. So they call their products as a masterpiece. तो आप जिस दिन अपने प्रोडक्ट को मास्टरपीस बनाओगे, उस दिन आप ये क्वेश्चन रिविजिट करना जो आपने मुझसे एग्जांपल्स के साथ कोट किया है। Then you'll find कि your masterpiece is worth to be called like a writing instrument or a timepiece. ओके सर, ओके। मैंने आपके क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। I've done Yes. my full capacity सर, to आपने सही आंसर दिया सर। अभी तक हम यही सोचते थे, मेन जो है वो ईगो वाली जो बात आ जाती है कि दूर से ही लोग देखने लग जाए कि हाँ इसने रोलेक्स पहन रखी है, दूर से जूते देखने लग जाए कि हर्ष पप्पी के जूते पहने हुए हैं। yes, but उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज्ड है शू में, ट्रस्ट मी, दैट्स वेरी गुड, दैट गिव्स योर फुट अ वेरी गुड कंफर्ट। मैंने अभी पीछे स्केचर्स के मेरे जो भी शूज हैं या स्नीकर्स हैं या सैंडल्स हैं,
उनकी लाइफ मेरे साथ ऑलमोस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 साल रहती है, ठीक है ना। 7-8 साल में मैं एक बार खरीदता हूँ जूता या चप्पल, कुछ खरीदना होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने वुडलैंड का सैंडल लिया था, उसने मेरे को बेचारे ने खूब सर्व किया। इट सर्व मी फॉर ऑलमोस्ट 10 years। और मैंने उसको जब डिस्कार्ड किया, और देन माय वाइफ सेड कि स्केचर्स के सैंडल लो। एंड जो आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आई वाज ऑफ दैट पॉइंट, एंड आई सेड कि आई डोंट थिंक इट विल बी वर्थ। एंड शी सेड नो, ट्राई वंस। ठीक है, तो एक बार जब मैंने उसका ट्रायल किया, उस सैंडल का जो मैंने लिया, आई फाउंड आउट टू बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल वॉकिंग। तो जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने उसमें यूज की है, उससे मेरे जो फीट हैं उनको बहुत आराम मिला। एंड आई रियली चेरिश्ड इट, क्योंकि मैं खरीदता ही 7-8 साल में एक बार हूं, तो फॉर मी इट वाज अ वर्दी डील कि मैंने अगर 4,000 का एक सैंडल भी खरीदा, तो मुझे पता है कि 8 साल चला तो वो 500 रुपए साल का पड़ा मेरे को। So from economics point of view also it was worthy for me, है ना। So it's like this. So when we invest, these are all investments. हम लोग खर्चे की बात करते हैं, but from being an economist and entrepreneur, इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, see it from a point of view of it's an investment. An investment was worthy because I optimally used it. मैंने इसको optimally use किया, क्योंकि कंजम्पशन गुड था, तो मैंने उसको ऑप्टिमली यूज किया। सो दैट्स इट। गुड। ओके सर, थैंक यू। माय प्लेजर। यस, एनी अदर सर क्वेश्चन? सर एक्चुअली कल मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था सर, जिसमें रंगोली कंपटीशन था वो। तो अमृत महोत्सव से रिलेटेड, तो सर कल मैंने एक चीज ये नोटिस की थी कि जो सर आजकल के बच्चे हैं, या फिर जो बड़े बच्चे 11th-12th वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, तो वो रंगोली कंपटीशन में सर वो क्या कर रहे थे कि गूगल पे फोटो मतलब गूगल पे टाइप किया, फोटो सर्च किया, और वही कॉपी वाला बना दिया। और सर मैंने एक चीज और ये नोटिस की कि सर 10 से 12 साल की 2 बच्चियां थी, उन लोगों ने सर मतलब नॉर्मल सा, मतलब आए, चौक उठाया, फ्लावर बनाया, उसके साइड में जल्दी बना लिया, और मतलब उनने सर्च नहीं किया, उनका मतलब ऐसे डायरेक्टली बना लिया। और सर काफ़ी अच्छा बनाया था, काफ़ी मेहनत की थी। तो सर मेरे को ये लगता है कि जैसे सर ये आजकल सर सब लोग एडिक्टेड हैं, मतलब अगर किसी से आपने कुछ पूछा कि हाँ इस बारे में क्या सोचते हो, क्या है, तो सब गूगल पे सर्च कर लेंगे, या फिर कोई क्रिएटिवली उतना कुछ सोचता नहीं है। तो सर जहाँ तक कि लास्ट टाइम योगेश सर से हमने डिस्कस किया था, तो जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं एनिमेशन के, वो भी सब इधर उधर से उठाए हुए हैं, कॉपीड हैं। तो सर या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो सर बच्चे लोग हैं सर, उन लोगों सर कुछ ऐसा छोटा सा कोर्स डिजाइन करें जिसमें सर वैसे एक्टिविटीज हो, जिससे सर मतलब इनोवेटिव कैरेक्टर्स बन जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर क्रिएटिव चीजें बहुत ज्यादा होती। यस, देखो सबसे पहले तो यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू कैन यूज अ थिंग ओनली एज अ रेफरेंस। आप रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस इज ऑलवेज हेल्दी, बट उसको एग्जैक्ट कॉपी करना इज नॉट गुड, यू आर किलिंग योरसेल्फ। रेफरेंस ले सकते हो कि अच्छा ये बिल्डिंग थी तो ये ऐसी थी, नाउ व्हाट कैन आई डू बेटर देन दिस, सो दैट विल बी मोर हेल्दी, है ना। तो दैट इज देयर। गूगल, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है, वी फर्स्ट अटेम्प्ट दोज वर्क्स विच आर एफर्टलेस, या जिसमें मिनिमम एफर्ट लगता है, तो हम कन्वीनियंस के हिसाब से उस काम को पहले करते हैं, जैसे गूगल कर लिया, सो दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट नाउअडेज, है ना। तो कुछ लोग गूगल करते हैं रेफरेंस लेने के लिए, कुछ लोग गूगल करते हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए। सो यूज गूगल एज अ टूल फॉर रेफरेंस, तो अच्छा लगेगा।
भीम का जो करेक्टर है मेरे ख्याल से यूनिकली डिजाइंड है, वो कॉपी पेस्ट नहीं है। आप भीम को एज अ रेफरेंस ले सकते हो, बट आप अपना डिजाइन बना सकते हो। जो छोटा भीम आता है, आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट टू दैट। तो आप ऐसे अपने खुद के वो काम कर सकते हो। that will be good and better. Yes. And I hope I have answered your query, Bhupinder. Yes. Thank you. Any other question? किसी को कुछ और पूछना है? पूछ लो, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, just ask, no problems. सर एक आइडिया था। मतलब सर, कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले सर एक्चुअली हम लोगों को हमारा ऑफिस शिफ्ट करना था और कहीं। तो सर उस टाइम पे मतलब हमको वर्कर्स वगैरह की ज़रूरत थी, और सर ऑन दिस मतलब वर्कर्स मिल नहीं रहे थे। और सर वहाँ पे जो लोकल एरिया था वहाँ पे ऐसा रहता है कि सुबह 7-8 बजे जाओ, वहाँ पे बहुत सारा रश रहता है, किसी को भी उठा के ले जाओ, तो वैसे सब चलते रहता है। तो सर वही मतलब काफ़ी 2-3 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी किसी का नंबर नहीं था। या फिर सर अगर कुछ ऑलरेडी अगर डेटा वगैरह रहता उनका ऑन साइट, अगर डेटा रहता तो हम लोग वहाँ से कलेक्ट करके डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। और सर इन लोगों का एक प्राइस भी फिक्स नहीं रहता है। किसी से 2000 ले लिया, किसी से 700-800 में किसी के लिए काम कर दिया, मतलब ये वाली चीज़ें भी। तो वही सर मतलब हम लोग अगर किसी सिटी में जाते हैं, अगर हमको वहाँ के मार्केट का पता नहीं रहता है, तो हम लोग भी कभी कभार ज़्यादा पैसे दे देते हैं। या फिर अगर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ ये काम कितने में होना है, तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा कम दे के उस रेंज में दे देते हैं, तो हमको ना इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो सर कहने का मतलब ये था कि मतलब उन लोगों का भी लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब था, जैसे और उनका काम करने का तरीका भी, जैसे अगर कुछ कांच वगैरह है तोड़ दिया शिफ्ट करने के टाइम पे। अभी तो वैसे इन सब चीज़ों पे सर और जो स्टार्टअप्स हैं वो काम करते हैं, जैसे कि वो पेंट वाला हो गया कि हाँ घर पे पेंट आके कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें। बट सर मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या, ताकि उनका लाइफस्टाइल भी सही हो जाए? अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है, ऑर्गेनाइज तरीके से ही करता है, but because of their product features and their properties they charge more, है ना। so ये तो ट्रेड ऑफ है, you have to see the trade off. वही बात है कि लोग it's just about writing instruments or a pen, it's similar. हाँ, पहले मैं विपुल का क्वेश्चन ले लूं। योगेश जी वो पूछना चाह रहा है कुछ। हाँ, यस विपुल। ओके सर। सर फर्स्ट तो मैं ये क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने अग्रवाल पैकेज का एग्जांपल दिया था, है ना सर। जैसे कि अगर मैंने क्या कहते अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा क्या कहते वे में किसी चीज को यूज किया, है ना, और फिर उसको क्या कहते हैं मैं उस पर कंपनी बना के उस पर आगे कर रहा हूँ, है ना, उस टाइप से डिलीवर कर रहा हूँ अच्छे वे में, है ना, सेटिस्फाई वे में। लेकिन सर ऐसे में अगर मैं खुद ये चाहता हूँ कि कस्टमर को उतना ज्यादा क्या कहते हैं पैसा ना देना पड़े, मतलब थोड़ा सा उनके भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, तो मुझे क्या रिस्क है जो अपनी कंपनी के लिए उठानी पड़ेगी? देखो विपुल, जो जिस प्रोडक्ट की हम बात करें दैट इज पैकर्स एंड मूवर्स। तो पैकर्स एंड मूवर्स में वाई अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर इज एक्सपेंसिव बिकॉज उनके एडवर्टीजमेंट टीवी पे बहुत बड़े आते हैं, दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट।
है ना? तो आप अपनी एक कॉस्ट मिनिमाइज कर लोगे. मेन इज मोर डिलीवरी. अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स को क्योंकि नेशनली जाना था, तो उनको वो एडवर्टीजमेंट नेशनल टेलीविजन पे करने पड़े, इसलिए वो नेशनल लेवल पे पहुंच गए. आप शुरू में इतना एडवर्टीजमेंट ना करके आप उसको सर्विस बेस्ड अगर अच्छा बनाते हो तो आपका नाम चलता है. ऐसा नहीं है. बोर्ड आपने लगाया होता है, वहां से एक इंफॉर्मेशन पास होती रहती है. आप पैम्पलेट्स इनिशियली दे सकते हैं. आप कॉर्पोरेट्स में अपना पैम्पलेट दे सकते हैं. समथिंग यू कैन डू दैट. उससे आपकी कॉस्ट कम रहती है. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई पीपल जो आपके रोल पे रहेंगे. तो आपको डेली वेजेस नहीं रखने हैं. आपको उसमें कुछ लोगों को तो अपने रोल पे रखना पड़ेगा. So the moment you keep people on your role, they are satisfied and they have a sense of security कि उनको एटलीस्ट इतना पैसा मिलेगा हर मंथ. So that will make them or help them, empower them to lead a better life, sustain their life. है ना? तो वहां से आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी कमिटमेंट्स इंप्रूव रहेंगी और आपका नाम होगा. वंस यू स्टार्ट गेटिंग योर नेम, जो कि हमने बोला शाम के समोसे खाए क्या समथिंग एंड ऑल, तो वो आपके जो है वहां से आपको चीजें मूव कर जाती है. इट टेक्स टाइम. एवरी प्रोडक्ट विल टेक टाइम. मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एकदम से आपको मिलता है, unless and until it is like a boom, like जो 101 रुपए का फोन आया था, स्मार्टफोन निकाला था, दैट वाज अ होल फ्रॉड. तो जिन चीज़ आफ्टर इट बैकिंग है बहुत सॉलिड. तो unless ऐसी चीज ना हो तो हर प्रोडक्ट को उठने में करने में टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम. जब तक मार्केट में डिलीवरी परफॉर्मेंस नहीं आएगा तब तक नहीं होगा. यस विपिन. हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बेटे आ रही है, बताओ. सर मेरे फादर की है ना चाय की शॉप है. गुड. और वे अप्रैल 21 में नहीं है, चले गए कोविड में. अब मेरा फादर को टेक ओवर हो गया है, तो उन्होंने अपने स्तर से जितना भी कर सकते थे मार्केट कैप्चर उतना किया. काम चल रहा है. मेरी यही सोच रहती है कि हम अपने पापा के नाम को कैसे चाय के काम में मेहनत करके उसको कितना अच्छे से अच्छा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें. कुछ आइडियाज आ नहीं रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं. छोटा भाई लगा है, अभी से ही चल रहा है जैसे फादर करते थे. पर जैसे अभी साहिल ने बोला कि एक MBA चाय वाला है, उसने बहुत बढ़िया तरीके से, उसका नाम काफ़ी सुना भी है, मैंने खुद सुना है. पर आइडियाज उसका कुछ क्या आइडिया है उसका, किस तरीके से उसने अपने नाम को इतना फेमस किया, तो थोड़ा सा प्लीज बताइए सर कुछ. आप रॉ टी बेचते हो? नो सर. रॉ टी बेचते हो पैकेट में बंद करके या आप बना के देते हो? सर बना के चाय दे के उसमें डिस्पोजल में और डोर टू डोर जाना होता है देने. ओके. एक बार आप जो है ना, जैसे ब्रांड्स हैं लाइक चायोस, नाम सुना है चायोस? नो सर इतना नहीं सुना. मैं गूगल करो रेफरेंस के लिए. ओके. रेफरेंस के लिए आप ऐसे लोगों को जाओ, उनके यहाँ बैठो, एक कप चाय पियो. ठीक है? यस सर. लर्निंग के साथ जाना, दिमाग को टेंशन देके मत जाना, इसको रिलैक्स करके फ्री करके जाना. यस सर. क्योंकि जो आइडियाज हैं वो आपके फ्री माइंड में आते हैं. यस सर. टेंशन वाले माइंड में आइडियाज नहीं आते. आइडियाज आने का कोई टाइम नहीं होता. ठीक है? 24 घंटे में कभी भी आता है. कई आइडियाज मेरे को रात को सोते हुए आते हैं. ठीक है? सो इट्स लाइक दिस. बात करते हुए आइडिया जाता है. सो आइडिया इज दिस कि प्रॉपर्टी ये है कि आपको फ्री माइंड होना पड़ेगा, टेंशन में नहीं.
बढ़ाना है अच्छी बात है, कैसे बढ़ाना है बहुत अच्छी बात है, पर उसकी टेंशन लेना बेकार बात है। फ्री माइंड रखोगे, आइडियाज ज्यादा आएंगे। चीजों के रेफरेंस लो, रेफरेंस लेके अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी करो, चीजें निकल के आएंगी। ऐसा नहीं है नहीं निकलेगी। ओके सर। ठीक है ना। सो यू हैव टू सी आपकी वेसिनिटी क्या है, अपनी वेसिनिटी को समझो, जहां पे आप लोकेटेड हो उस चीज को समझो, अपने कस्टमर को समझो, है ना। जिस दिन आप अपने कस्टमर को समझोगे उस दिन प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना। चाय भी एक साइंस है, चाय भी ऐसे ही नहीं होती है। हमारे यहाँ पे भी बहुत पीछे हैं, बाहर आप अच्छी कंट्रीज में चले जाओ, वहां पे तो व्हाइट कॉफी पे पहुंच गए लोग, व्हाइट कॉफी। आप अभी डार्क ब्लैक कॉफी की बात करते हो, वहां पे वो व्हाइट कॉफी पे जी रहे हैं। राइट। सो इट्स लाइक दिस। तो आप ऐसे करोगे, कुछ वैसे फैसिलिटीज को विजिट करो, वहां पे उनका प्रोडक्ट यूज करो। जी बिना प्रोडक्ट यूज करे समझ नहीं आएगा कि वो क्या दे रहा है और मैं क्या दे रहा हूं। देन वहां पे बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि वो कितना अच्छा है और आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। एंड देन डू यूजिंग दोस रेफरेंसेस अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करो, इनोवेट करो और काम करो, ठीक तब सर। होगा, है ना। सर क्या नाम बताया आपने, एक बार प्लीज रिपीट करना। चायोज, चायोज। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। You're welcome. हाँ, नेक्स्ट सेशन हम Q&A पे रख सकते हैं, दैट विल बी गुड। आपने सेशन रिकॉर्ड तो किया होगा, आई होप। तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये सेशन दिखा सकते हैं, दे कैन लर्न। क्योंकि आई डोंट नो नेक्स्ट सेशन में मैं बोलूंगा तो कितना कैसा बोलूंगा, आई हैव नो गारंटी, है ना, कि यही चीज बोलूंगा या कुछ और बोलूंगा। क्योंकि सब चीजें एक्सटेम्पोर हैं, सो इट विल बी देयर। हाँ विपुल, यू वांट टू से समथिंग? सर एक्चुअली मेरा एक सर हमारा योगेश सर के साथ एक क्लास हुआ था थोड़े दिन पहले, जिसमें सर हमसे इनोवेटिव हमसे थोड़ा सा आइडिया पूछा गया था, इन्वेंटेड आइडिया। तो सर मेरा एक आइडिया था, एक्चुअली है, और बेसिकली सर जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक कंपनीज बेसिकली कैसा आपका डाटा है ना, बेसिकली हमारे डाटा को एनालाइज करती हैं, और फिर व्हाट्सएप से एनालाइज होने के बाद वो फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट, इंस्टा पे एडवर्टाइजमेंट हमें मिलते हैं, है ना, दूसरे कंपनी से। तो मैंने ये क्या कहते हैं चीज सोची है कि कहते हैं कि अगर यही डाटा एनालिस्ट की एनालाइज हम करें, है ना, और इन्हीं डाटा एनालाइज करने के बाद हम क्या कहते हैं एक ऐप क्रिएट करें जो प्रिडिक्ट कर सके स्टार्टअप कंपनीज के लिए कि आपका जो स्टार्टअप है इस फील्ड में, जैसे कि अगर किसी को चाय का, विपिन फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, चाय का करना है, तो आप इसे किस टाइप से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, किस टाइप से इसे आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ से इन्वेस्ट ले सकते हैं, है ना, मतलब कौन है जो आप पे क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर सकता है, और किस टाइप से आप क्या कहते हैं इस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, या क्या क्या परसेंटेज है आपके आगे बढ़ने के, है ना, कब तक रहने, ये एक हल्का सा प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने एक ऐप का सोचा था कि कहते हैं कि अगर हम एक ऐसा ऐप बनाए तो ऑल ऑफ डाटा एनालिस्ट। इट्स